Jai Hind to all the amazing learner. First of all, I would like to wish you all a very pleasant morning. So here today I Soumya ma'am would taking up your history lectures that will be the continuation of the last lectures. As we have already discussed in our very first lecture of the syllabus discussion that history is a part of social science paper, and this paper in your board examination it will carry total number of 80 marks. 20 marks will be for your internal assessment. In that 80 marks of paper of social science, your history portion will be carrying 20 marks. In that there will be very short answers, as we already discussed that you have to give it answer it in one word or in one line. Then there will be short answer question that you will be answering in about 80 words, and then there will be very long answer which you are answering in more than 100 words. And after that there will be also two map questions. The map will be given with you, and you have to only mark the points as asked in the question. We will be having a soon discussion of one of the question paper also, most probably last year question paper, for your better understanding that how your papers are made. So till then, keep waiting and keep watching our channel. And for today we are going to discuss the next lecture of our history portion. In last lecture we already started the chapter The Rise of Nationalism in Europe. As you can see on your screen, the chapter number 1, The Rise of Nationalism in Europe. In this, we discuss about the painting of the Frederick Sorio, then what does it mean, then many other points also we discuss in that. Now we will come to the continuation of our last topic, that is, what did liberal nationalism stand for? And our next topic that we will be discussing today is the conservatism after 1815. So let's continue our first topic, what did liberal nationalism stands for? So dear students, as we discussed in our last class that what did liberal nationalism stand for, we already gone through the meaning of the liberal. Liberal means freedom. So now we will going to further this topic, and we will be moving a little bit forward. So let's see that in the eyes of the people of the France, the equality means a universal suffrage. फ्रांस के जनता की नज़रों में जो इक्वालिटी होती थी उसका मतलब होता था कि यूनिवर्सल सफरेज. अब सफरेज मतलब क्या होता है? सफरेज मतलब डायरेक्टली होता है कि राइट टू वोट, और यूनिवर्सल सफरेज मतलब होता है कि हर किसी को वोट देने का अधिकार दिया जाए. बट ऐसा फ्रांस में पॉसिबल नहीं था, हर किसी को वोट देने का अधिकार नहीं था. जैसा कि आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि कुछ ही लोगों के पास वोट देने का अधिकार था, जैसे कि एक्टिव सिटीजन बोला जाता था, और जिन लोगों के पास वोट देने का अधिकार नहीं था उन्हें पैसिव सिटीजन बोला जाता था. और इस कैटेगरी में कौन कौन आते थे? वुमेन्स आती थी, चिल्ड्रंस आते थे, और बहुत सारे मेंस आते थे जो कि बिलो द ईयर ऑफ 25 ईयर्स के थे, एज वेल एज जिनकी इनकम भी अच्छी नहीं हुआ करती थी. तो ये सारे लोग को यूनिवर्सल सफरेज का अधिकार नहीं था, मतलब कि वोटिंग राइट्स नहीं थी. तो रेवोल्यूशनरी फ्रांस में जो पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था, पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट हुआ था डेमोक्रेसी के अंदर, मतलब कि जब वहाँ पे किंग को हटा दिया गया था और लोगों की गवर्नमेंट बन गई थी, मतलब एक लीडर्स की गवर्नमेंट बन गई थी, तो वहाँ पे किसको सिर्फ वोटिंग राइट दिया गया? वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी ओइंग मैन को दिया गया, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि एक्टिव सिटीजन कौन होते थे. तो बाकी लोग जो हैं वो इस राइट के अधिकारी नहीं थे. बस थोड़े पीरियड के लिए जब जैकोबिन क्लब के लोगों का रूल फ्रांस के ऊपर आया था, तब जो है सारे अडल्ट मेल्स को यूनिवर्सल सफरेज मिल गया था, मतलब कि जितने भी वुमेन्स वगैरह थी सबको मिल गया था अडल्ट सफरेज. पर फिर से फ्रांस की कंडीशन बैक हो गई जब नेपोलियन फिर से आ गया. उसने फिर से जो है वुमेन को के जो राइट्स होते थे उसको रिड्यूस कर दिया, उनको स्टेटस जो है वो बहुत ही कम कर गया. वो उनके पास क्या अधिकार था? वो सिर्फ अपने फादर और हस्बैंड के जो भी राइट्स होते थे उसके अंदर सप्रेस हो जाती थी. तो इस तरीके से फ्रांस में जो है 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में वुमेन और नॉन प्रॉपर्टी जो मैन हुआ करते थे वो कंटिन्यूस अपने हक के लिए लड़ते थे. वो चाहते थे कि उनको सफरेज राइट मिले, उनको वोट करने का अधिकार मिले और इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले प्रॉपर्टी मैन की तरह.
सो इकोनॉमिक स्फीयर में भी देखा जाए तो फिर लिबरलिज्म का मतलब ये होता है कि फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। ओके, सो फ्रीडम ऑफ द मार्केट्स मतलब क्या कि जैसे कि सारी चीज़, दुकानों को एक दुकान से दूसरी दुकान पे कस्टमर्स को जाने की इजाज़त हो, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जो डीलर्स हैं वो मूव कर सकें अपना सामान लाने के लिए, एक कस्टमर्स भी दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकें। तो ये सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, ये सारे पॉइंट्स होते हैं अबाउट द इकोनॉमिक स्फीयर। पर ऐसा भी अर्ली 19th सेंचुरी में पॉसिबल नहीं था। अब एक एग्जांपल के तौर पे हम समझ लेते हैं ये कि किस चीज़ की बातें हो रही है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जर्मन स्पीकिंग रीजन के बारे में बात हो रही है। तो एक एरिया था नेपोलियन के राज में, नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेटिव मेशर्स में, जहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हुआ करते थे वो जर्मन स्पीकिंग होते थे। और उनके उस एरिया को क्या बोला जाता था, उनके उस एरिया को बोला जाता था कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट। रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ओके, सो इस जो सारे 39 स्टेट्स थे, वहाँ पे जितने भी लोग हुआ करते थे, वहाँ पे जितने भी 39 स्टेट्स हुआ करते थे, सबकी जो है अलग अलग करेंसी होती थी। मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे कि एक एरिया है उसमें फॉर एग्जांपल कि मतलब एक स्टेट है उसमें 39 सिटीज़ है, तो यहाँ पे 39 स्टेट्स अलग अलग रखा गया है। तो सारे स्टेट में जो है अलग करेंसी होती थी, तौलने का जो मेशर होता है वो अलग होता था, वेट्स अलग होता था। तो फॉर एग्जांपल कोई मान लो एक मर्चेंट है, एक सामान खरीदने बेचने वाला पर्सन है, वो 1833 में हैंसबर्ग नाम की एक सिटी से नवरम्बर्ग नाम की एक सिटी पे गुड्स बेचने के लिए जा रहा है। तो उसे क्या करना पड़ता था, उसे 11 कस्टम बैरियर्स को पास करना पड़ता था। मतलब कि रास्ते में जो टोल होते हैं ना, जैसे टोल प्लाजा होता है, वैसे ही व्यापारियों के लिए टोल बने होते थे, जहाँ पे उन लोगों को चुंगी जो कहते हैं वहाँ पे टैक्स देना पड़ता था अपने सामान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने के लिए। तो मतलब एक शहर से दूसरे शहर जाने में ही वर्कर्स को क्या फेस करना पड़ा, अराउंड 11 कस्टम बैरियर्स फेस करना पड़ा, और हर बैरियर पे उन्हें 5% दे देना पड़ता था। मतलब जितना भी मतलब जो उसका अमाउंट होता था सामान का, गुड्स का, उसका गुड्स का 5% उन्हें एज ए कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या होता है, जो गुड्स सामान के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जब सामान को एक्सपोर्ट किया जाता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे, तो एक स्पेशल टैक्स लगता है हर सामान पे, उसे ही हम कस्टम ड्यूटी करते हैं। ये आज भी लगता है। अगर आप अमेरिका से इंडिया में कोई गुड्स ला रहे हो या इंडिया से अमेरिका में कोई गुड्स सेल करने के पर्पज़ से ले जा रहे हो, तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगता है, मतलब कि टैक्स लगता है बॉर्डर क्रॉस करने का, उसे ही हम कस्टम ड्यूटीज़ कहते हैं। तो इस तरीके से ड्यूटीज़ वगैरह जो हर जगह अब आप सोच सकते हैं, मतलब 11 जगह बैरियर है और 11 जगह लग रहा हो, हर जगह 5% लग रहा है, तो फिर व्यापारियों की क्या हालत होती होगी। उन्हें तो मन ही नहीं करता होगा कि वो किसी भी पर्पज़ से जाए, अपना कुछ भी ट्रेड वगैरह करने जाए। तो इस तरीके से जो है मतलब ये तो पैसा तो लगता ही लगता था, और उसके साथ ही ये जो पूरा प्रोसेस था वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हुआ करता था। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, और वेट कैसे अलग अलग होता था, मेशर्स कैसे अलग अलग होता था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो है कि क्लोथ का उस वक्त एली में मेशर किया जाता था। एली उनका कुछ अपना ही टर्म होता था मेशरमेंट का, जैसे इस समय हम लोग मेशरमेंट का लेते हैं जैसे सेंटीमीटर, ये इस तरीके से, उस तरीके से उनका जो है अपना मेशर होता था, एली जिसका नाम था। तो हर ईच रीजन पे जो है एली का नाप कुछ और ही होता था। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम तो जानते हैं ना कि 1 फुट मतलब कि 12 इंचेस होते हैं, और वो पूरे वर्ल्ड में सेम है। बट एली जो है वो हर जगह इक्वल अलग होता था, जैसे कि इक्वल नहीं होता था। जैसे कि मान लो हैंसबर्ग जैसे में एली का मार्क जो है वो कुछ और है, वो 10 सेंटीमीटर मान लो है, और नुरम्बर्ग में एली का माप जो है 12 सेंटीमीटर होता था। तो इससे जो ट्रेडिंग में है उसमें समझ सकते हो, जाहिर सी बात है कि कितना कन्फ्यूजन होता होगा। मतलब हमें पढ़ने में ही इतना कन्फ्यूजन हो रहा है, तो उस वक्त जो है लोगों को मेजर करने में कितना ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ करता होगा। तो ये सारी कंडीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी और बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली थी, ना ही कि सिर्फ कॉमन जनता की भाषा में, बल्कि जो ट्रेडर्स मर्चेंट्स थे उन सब के लिए। सो इसके लिए वहाँ के लोगों ने क्या किया, वहाँ के लोगों ने कहा कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई, अब ये तो बहुत ही हेडेक वाला चीज़ है, ये तो बहुत ही सर खपाने वाला चीज़ है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1834 में एक कस्टम यूनियन बनाया। कस्टम यूनियन क्या होता है, व्यापारी संगठन।
मतलब कि जो व्यापार करते थे जो लोग, उन्होंने अपने भले के लिए एक कस्टम्स यूनियन बनाया, एक एसोसिएशन बनाया, ताकि वो लोग की जो भी डिमांड हो वो उसे साथ में मिल बैठ के उसको उसका कोई निष्कर्ष निकाल सके। तो उस कस्टम यूनियन का नाम था, जो 1834 में बना था, उसका नाम था जोल्वरीन। और वो फॉर्म कहाँ से हुआ था? पर्शिया नाम का एक प्लेस था, उसके इनिशिएटिव से फॉर्म हुआ था। मतलब कि पर्शिया के व्यापारी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, और उन्होंने ही ये जोल्वरीन को अपने कस्टम यूनियन को जगह जगह 39 स्टेट्स में बनाया, उसको प्रमोट करवाया। और उसके बाद इन्होंने ये सब एक मतलब डिस्कस कर लिया कि हम क्या क्या करेंगे अपने यूनियन के तहत। हम सारे जितने टैरिफ्स जो भी लगते हैं बैरियर पे, वो मतलब जितना भी टैक्स वगैरह हर बैरियर पे लगता है, उसका नंबर हम कम कर देंगे। जैसे कि जो करेंसीज थी वो 39 स्टेट्स में पहले कितनी थी? 30 थी। अब आप समझ सकते हो कि मतलब जैसे कि एक स्टेट में डॉलर है, दूसरे स्टेट में येन है, तीसरे स्टेट में रुपए है, चौथे स्टेट में कोई और करेंसी है। तो हर करेंसी की वैल्यू अलग अलग होती है, राइट? तो इससे लॉस कितना होता होगा, कितनी प्रॉब्लम होती होगी एक्सचेंज करने में और सामान वगैरह खरीदने में। तो हर जगह तो जो व्यापारी जाते होंगे वो तो करेंसी एक्सचेंज की लाइन में ही लगे रह जाते होंगे, अपने सामान को तो वो लोग कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पाते होंगे। तो इसलिए सबसे पहला काम जो है वो किया गया कि पहले तो टैरिफ अबॉलिश किया जोवरिन ने। दूसरी बात उन्होंने क्या किया, जितना भी करेंसीज का उसको सिर्फ 30 से कितना कर दिया, 2 करेंसी कर दिया, बहुत ही कम कर दिया। ओके, इस तरीके से उन्होंने एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए, अपने पैसे के इंटरेस्ट के लिए, कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए नेशनल यूनिफिकेशन का काम किया। धीरे धीरे ये लहर जो है पूरे यूरोप में फैलने लगी। जोल्वरीन के बारे में पूरे यूरोप के व्यापारियों को पता लगने लगा, और एक तरीके से वो सब इकट्ठा होने लगे। और इस तरीके से एक कहीं ना कहीं वो लोग, उनके अंदर नेशनलिज्म की भी भावना तो आई कि हाँ, हम इस नेशन में रहेंगे, हम इस तरीके से अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ये जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट था वो एक एक करके हर तरीके से, हर स्पीयर में, चाहे वो कॉमन लोगों की बात हो, चाहे वो व्यापारियों की बात हो, हर तरीके से नेशनलिज्म सेंटिमेंट जो है वो ग्रो ही कर रहा था, उस समय इंक्रीज ही हो रहा था। Okay, dear student, so this was about your topic, why did liberal nationalism stand for. I hope that your topic is clear, and if you have any doubt you can mention it below. You can also put it in the comment box. Now we will move to our next topic that we already discussed in the beginning of this lecture, that our new topic is 2.3, a new conservatism after 1815. So before starting this, we would like to first see about the meaning of conservatism. So here it is written on your screen, a political philosophy that stresses the importance of traditional established institution and custom and preferred gradual development to quick चेंज। मतलब कि कंजर्वेटिज्म मतलब होता है कि पॉलिटिकल थिंकिंग, एक तरीके से मतलब कि लोगों का एक पॉलिटिकल माइंडसेट होता है। वो किस पे स्ट्रेस करता है? वो जो कंजर्वेटिज्म वाले लोग होते हैं वो लोग एक उनका ग्रुप होता है लोगों का, और उनका एक पॉलिटिकल दिमाग होता है। और वो लोग हमेशा ये चाहते हैं कि जो पहले से चीज़ें चली आ रही थी, बहुत पहले से ट्रेडिशनल जो चले, जो राजा वाजा का राज हुआ करता था, और जो ऐसे नोबल्स वगैरह का किंगडम हुआ करता था, वही अच्छा होता था, वही इंस्टीट्यूशन अच्छा होता था, वैसे ही जैसे कस्टम बैरियर्स लगते थे वही अच्छे होते थे। और वो लोग जो है ग्रेजुअल डेवलपमेंट और क्विक चेंज को चाहते थे कि वो धीरे धीरे आए, मतलब आए। ऐसा नहीं है कि वो लोग एकदम ही बहुत ज़्यादा चाहते थे कि कोई डेवलपमेंट ही ना हो, डेवलपमेंट चाहते थे वो लोग, पर वो चाहते थे कि वो जो है धीरे धीरे आए। ठीक है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज, मतलब कि वो ग्रेजुअल डेवलपमेंट, जो धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, उसको ज़्यादा प्रेफर करते थे, ना कि क्विक चेंज की अचानक से एकदम एक रेवोल्यूशन आ जाए। तो मेनली कौन हो सकते हैं कंजर्वेटिज्म? मतलब अब अभी जब मैंने डिस्कस किया इसका मीनिंग, तो दिमाग जा रहा होगा कि जब राजा वगैरह की जो जो रूल को अच्छा मानता तो वो कौन होगा? वो राजा की फैमिली वाले ही होंगे, ऑब्वियसली नोबल्स की फैमिली वाले होंगे। तो कंजर्वेटिज्म जो है वो इसी मेंटालिटी पे बिलीव रखते थे कि सब कुछ जो है वो पहले जैसा हो, पहले जैसा ही पूरा कंट्री चले। सो हमने डिस्कस किया कि नेपोलियन जो है जब फ्रांस में आ गया था तो उसको हराने के लिए 4 किंगडम साथ में आए थे। वो अभी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से वो 4 किंगडम थे, क्योंकि नेपोलियन की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और बाकी आसपास के कंट्रीज़ वाले उससे डर रहे थे। तो उन्होंने चाहा कि नेपोलियन का ये सारा पावर ख़त्म हो जाए। तो उन्होंने साथ मिलके 4 कंट्रीज़ ने साथ मिलके नेपोलियन की आर्मी के खिलाफ, नेपोलियन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। और फाइनली जो है नेपोलियन इस वॉर के लिए प्रिपेयर नहीं था और वो बैटल ऑफ वाटरलू इन द ईयर 1815 में हार गया।
तो इसी के बाद जब नेपोलियन फिर से फ्रांस से ख़त्म हो गया, किंग का राज फिर से फ्रांस में ख़त्म हो गया, तो फिर वहाँ पे जो लोग आए, जो न्यू लोग निकल के आए, वो लोग अपने अपने थिंकिंग में डिवाइडेड थे। और उसमें से कुछ लोग जो थे जो कंजर्वेटिज्म को बिलीव करते थे, जो चाहते थे कि हाँ वही किंग का राज जो पहले चला आ रहा था वही फिर से हो जाना चाहिए, और वही जो है सबसे बेस्ट होता था। चर्चेस होते थे, सोशल हायरार्की बना हुआ था, प्रॉपर्टी ऑफ जो है वो कुछ लोगों के हाथ में प्रिजर्व रहती थी, जो किसके हाथ में प्रिजर्व रहती थी, जो उसको डिज़र्व करते थे बहुत ज़्यादा। मतलब कि पूरा एटमॉस्फेयर जो है जो प्री रेवोल्यूशनरी डेज में था, मतलब कि फ्रांस में 1789 का रेवोल्यूशन आने से पहले जो पूरा एटमॉस्फेयर था वो चाहते थे बिल्कुल वही एटमॉस्फेयर हो, मोनार्की उनकी कंट्री को रूल करे। और इसके साथ ही साथ वो थोड़ा सा बस चेंज चाहते थे, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है यहाँ पे, प्रेफर ग्रेजुअल डेवलपमेंट। तो थोड़ा सा डेवलपमेंट चाहते थे कि आर्मी जो है वो मॉडर्न हो, मतलब कि आर्मी पहले जैसे हथियार से लेस नहीं होती थी, तो अब इस टाइम जो है अच्छे अच्छे मॉडर्न हथियार हो उनके पास, एक एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी हो। ब्यूरोक्रेसी मतलब कि ऑफिशियल्स का पूरा सिस्टम, मतलब कि जैसे कि IAS PCS जो ऑफिसर्स बैठे होते हैं ऑफिसर्स में गवर्नमेंट चीज़ों को चलाने के लिए, उसे ब्यूरोक्रेसी मेंशन करते हैं। तो पूरा वो ब्यूरोक्रेसी का अच्छा सिस्टम हो, ताकि मतलब कि प्लेस पे किसी भी स्टेट में उनके फ्रांस के अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। इकोनॉमी डायनामिक हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा रुपए पैसे आए, बहुत अच्छे से सब कुछ हो। और ठीक है अबॉलिश कर देंगे फ्यूडलिज्म और सर्वडम को भी, वो लोग ने सोचा कि चलो ठीक है हम अबॉलिश कर देंगे और अपने ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज़ को स्ट्रेंथन करेंगे, पर इसके साथ ही हम फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर रहे हैं ठीक है, पर हमें जो है हमें अपना राज जो है अपना ऑटोक्रेटिक जो मोनार्की है वो बेस्ट चाहिए, मतलब कि हमें उसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए। हमारी जो इकोनॉमी हमारा जो किंग का रूल होगा, मतलब कि किंग का पावर जो होगा, या फिर नोबल्स अगर राजगद्दी को मतलब रूल कर रहे हैं नोबल्स किसी प्लेस में, तो उनका जो पावर हो वो मैक्सिमम हो। तो ये सारे ग्रेजुअल डेवलपमेंट के साथ कंजर्वेटिज्म नाम की सोसाइटी जो है वो फिर से नेपोलियन के हार के बाद 1815 में फ्रांस में आ गई और फ्रांस को रूल करने लगी। अभी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम डिस्कस करेंगे नेपोलियन को कौन हराया था। तो नेपोलियन को हराने वाले वो 4 कंट्रीज़ के पीपल थे, ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। रिमेंबर इट स्टूडेंट, दिस इज द इम्पॉर्टेंट टर्म। कौन कौन सी थी? ब्रिटेन, सेकेंड रशिया, थर्ड पर्शिया एंड फोर्थ ऑस्ट्रिया। इन चारों कंट्रीज़ की आर्मी ने साथ में मिलके नेपोलियन को हरा दिया था, ठीक है। तो नेपोलियन ने काफ़ी ज़्यादा हारने से पहले नेपोलियन ने काफ़ी ज़्यादा यूरोप के पार्ट्स पे कब्जा करके रखा था। तो इन्होंने सोचा कि अब तो नेपोलियन को हरा दिया तो सारा जो नेपोलियन का रिसोर्सेस है, जो पैसा है, जितनी भी टेरिटरी पे वो रूल करता था वो सारा हमारा हो गया, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। चारों कंट्रीज़ ने आपस में साथ में एक दिन बैठे, कहाँ पे बैठे? वियना में बैठे। कहाँ पे बैठे वो लोग? वियना नाम के एक प्लेस पे बैठे, मतलब कि वो एक प्लेस का नाम था यूरोप में, वहाँ पे वो लोग बैठे और उन्होंने डिसाइड किया कि हम आपस में लड़ेंगे नहीं, बल्कि नेपोलियन का जितना भी हिस्सा था, क्योंकि हम चारों ने साथ में मिलकर नेपोलियन को डिफीट किया है, तो नेपोलियन का जितनी भी टेरिटरीज वगैरह थी उसको आपस में बांट लेंगे। तो वियना में एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग का नाम क्या रखा गया? कांग्रेस रखा गया। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस, हाथ का पंजा वाली कांग्रेस नहीं, उनका अपनी एक कांग्रेस सोसाइटी थी और उसका नाम उन्होंने उस मीटिंग का नाम कांग्रेस रखा। और उसको मतलब हेड करने, अब जब किसी के घर में पार्टी में जा रहे हो तो मेहमान को मतलब होस्ट करने के लिए एक पर्सन होता है ना, मतलब अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जा रहे हो तो आपका फ्रेंड मतलब रहता है आपको ग्रीट करने के लिए, आपको वेलकम करने के लिए। उसी तरीके से जब वियना में मीटिंग हो रही थी तो वहाँ पे ऑस्ट्रिया जो प्लेस था, ऑस्ट्रिया कंट्री जो थी, उसका चांसलर, मतलब कि एक हेड के लिए वो लोग अपना एक वर्ड यूज़ करते थे, चांसलर। वो कौन था? ड्यूक मेटरनिच था, मतलब कि एक नोबल की फैमिली को बिलोंग करता था। किंग नहीं था बल्कि ड्यूक था, पर काम उसका वही चीज़ था, हेड था वो, उसका नाम था ड्यूक मेटरनिच। उसने उस मीटिंग को होस्ट किया, मतलब सबको वेलकम किया। फिर जितने भी डेलीगेट्स आए थे, डेलीगेट्स मतलब कि जो पीपल इन्वॉल्व होते हैं किसी मीटिंग में, कि जो मीटिंग किसी पर्पस से इस्टेब्लिश की जाती है, जो पीपल उसमें इन्वॉल्व होते हैं उन्हें डेलीगेट्स कहा जाता है। जितने भी डेलीगेट्स आए थे उस ट्रीटी ऑफ वियना में,
सो क्लियरली रिमेंबर दिस ट्रीटी ऑफ वियना उसे कहा जाता है, जो कब साइन हुई थी, इन द ईयर 1815। ट्रीटी मतलब क्या, कि मतलब एक पेपर में सब उन्होंने लिख लिया था कि हाँ हम इस तरीके से बांटेंगे, हम झगड़ा नहीं करेंगे आपस में, इस तरीके से सब हमारे बीच में नेपोलियन के टेरिटरीज और उसके पावर डिवाइडेड होते हैं, उसी को हम ट्रीटी ऑफ वियना बोल रहे थे। सो ट्रीटी ऑफ वियना कब साइन हुई, इन द ईयर 1815 में। और उन्होंने इसमें डिसाइड कर लिया कि अब भाई उनकी दुश्मनी नेपोलियन से ही थी, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जितना भी नेपोलियन ने चेंजेस किया था पूरे यूरोप भर में, जहाँ पे भी उसका राज था, हम उसको अनडन कर देते हैं, सब कुछ कैंसिल कर देते हैं, जैसा पहले नेपोलियन के आने से पहले जो सिस्टम चला आ रहा था वैसे चलेगा। फ्रांस में कौन आ जाएगा फिर से, फ्रांस में बारबन डायनेस्टी, मतलब कि लुइस 16 की फैमिली जो कि रूल कर रही थी फ्रांस में, वो फिर से आ जाएगी। हालांकि लुइस 16 तो अब मर चुका है, उसकी फैमिली मतलब उसके की बच्चे बच्चे बारबन डायनेस्टी जो थे वो आ जाएंगे, फ्रांस को फिर से रूल करने लगेंगे। फ्रांस में सारा पावर जो है वो फिर से किंग के पास चला जाएगा। और फ्रांस ने जितनी भी टेरिटरीज़ को जो एनेक्स किया था, एनेक्स मतलब कि जाके कब्ज़ा किया था, हमला करके कब्ज़ा किया था अंडर नेपोलियन, मतलब कि हमने पढ़ा ना नेपोलियन से उन लोगों को चिढ़ थी भाई, उसको हराया था और उस मतलब वो अच्छा नहीं लगता था, तो उन्होंने कहा सब कुछ अनडन कर देंगे। फ्रांस ने अगर कोई दूसरी, फ्रांस को पे ही तो राज कर रहा था नेपोलियन, उसके बाद उसने यूरोप के डिफरेंट प्लेसेस पे जाके एनेक्सेशन मतलब कब्जा करना स्टार्ट किया था, तो जितना भी प्लेसेस को एनेक्स करना किया था फ्रांस, वो सब हटा दिया जाएगा। फ्रांस जैसे पहले था बारबन डायनेस्टी के रूल में, वो वैसे ही रहेगा। और ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा, क्योंकि जितना भी फ्रांस ने कैप्चर किया था, क्या पता उसमें से बहुत सारे प्लेसेस उनके पर्सनल रहे हों, तो वो लोग नहीं चाहते थे कि उनके एरिया पे फ्रांस कब्जा करके रहे, तो उन्होंने हर चीज़ों को अनटन कर दिया। और सीरीज़ ऑफ स्टेट जो है वो सेटअप हो गई फ्रांस के बाउंड्रीज़ पे, बहुत सारे स्टेट्स को मतलब डेवलप किया गया, मतलब जो फ्रांस की बाउंड्री पूरे फ्रांस, जैसे कि ये एक फ्रांस है, इसको घेर के पूरा स्टेट्स को डेवलप किया गया, पूरे मतलब जितने भी एरियाज़ थे, जितने भी प्लेसेस फ्रांस को मतलब सर्कुलेट कर रहे थे, सर्कमफ्रेंस बना के रखे थे, उन सबको डेवलप किया उन्होंने। और डेवलप करके क्या किया, क्यों डेवलप किया उन्होंने, इसलिए डेवलप किया ताकि यहाँ से फ्रांस जो है, कभी फ्रांस के राजा का, जो भी राजा वहाँ पे रूल कर रहा है, उसका मन भी करे कि वो फ्रांस से बाहर निकल के उनके प्लेस पे कैप्चर करना स्टार्ट करे, तो वो ना कर पाए। मतलब कि इन स्टेट्स को उन्होंने इस तरीके से डेवलप किया कि वो इनके फेवर में काम करे। सो इस तरीके से फ्रांस में कुछ जो नियर बाई रीजन्स थे वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। और इस तरीके से बहुत सारे जो फ्रांस के किंगडम्स थे, जैसे कि जिसको उसने कब्जा कर लिया था, जैसे कि नीदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम वॉज सेटअप इन द नॉर्थ एंड जियोना, मतलब कि फ्रांस फॉर एग्जांपल ये फ्रांस है, ओके, तो इसके जो है नॉर्थ में, मतलब कि यहाँ पे अप साइड जो है, एज यू कैन सी हियर, नॉर्थ में जो है वहाँ पे क्या क्या सेटअप हुआ, नीदरलैंड और इंक्लूडिंग बेल्जियम, मतलब कि नीदरलैंड नाम का प्लेस और बेल्जियम नाम का प्लेस फ्रांस के नॉर्थ में सेटअप हुआ। और फिर जियोना वॉज एडेड टू द प्योर डोमिनेंट इन द साउथ, मतलब कि एक प्योर डोमिनेंट एक एरिया था साउथ में, कंट्रीज़ का ग्रुप था, वहाँ पे कौन सा ऐड कर दिया गया, जियोना नाम का प्लेस एडेड कर दिया गया। इस तरीके से फ्रांस को जो है बॉर्डर कर दिया गया। पर्शिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंस टू न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर। वेस्ट साइड में कौन आया, एज यू कैन सी हियर, वेस्ट साइड में कौन आया था, पर्शिया डेवलप हो गया। यहाँ पे पर्शिया सराउंड कर रहा था फ्रांस के वेस्ट साइड को, और ऑस्ट्रिया जो था वो नॉर्थन इटली को कंट्रोल कर रहा था। नॉर्थन इटली में थोड़ा बहुत कुछ इधर पार्ट था, उसको कौन इंक्लूड कर रहा था, उसको पर्शिया जो है वो वहाँ से नज़र कर रहा था, वहाँ से नज़र रखा था, नॉर्थ एज वेल एज ईस्टर्न रीजन सारे पे ऑस्ट्रिया। पर जो नेपोलियन का कन्फेडरेशन था 39 स्टेट्स का, जो नेपोलियन ने बना रखा था, उसको उन्होंने नहीं छुआ। कहा कि वो तो बहुत पचड़े वाला मामला है, वो वहाँ तो बहुत ज़्यादा ही नौटंकी है, जैसे कि हर जगह जो है अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग ये सब है, तो उसको उन्होंने नहीं हाथ लगाया था, उसको वैसे का ही छोड़ दिया था। और ईस्ट साइड में जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि ऑस्ट्रिया जो है वो नॉर्थ और ईस्ट में नज़र रख ही रहा था, साथ ही साथ रशिया जो है वो भी ईस्ट में नज़र रख रहा था फ्रांस पे, और उसको क्या दे दिया गया था, पोलैंड का पार्ट दे दिया गया था। पोलैंड एक सिटी का नाम है जो वहीं पे एग्जिस्ट करता था, उसको वो पार्ट दे दिया गया था। और पर्शिया वॉज गिवन ए पोर्शन ऑफ सेक्सोनोमी, एक सेक्सोनोमी नाम का प्लेस था पर्शिया को, उसका भी थोड़ा सा
प्लेस दे दिया गया था, तो ताकि पर्शिया वाले भी खुश रहे। जैसे कि हमने अभी ऊपर डिस्कस किया कौन कौन से 4 प्लेसेस थे जो कैप्चर करके जो नेपोलियन को हराए थे। दैट वाज ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, पर्शिया एंड रशिया। सो मेनली जितनी भी कंट्रीज़ जीती थी उनका मेन इंटेंशन यही था कि उनको नेपोलियन का जितना भी जो उसने किया था उसको अनडन करना था। जैसा सब कुछ पहले था यूरोप में नेपोलियन के आने से पहले, वैसे बनाना था। तो इसीलिए इन लोगों ने ये सारा सब कुछ किया और दोबारा से कंजर्वेटिव्स का जो रेगिम था, जो रूल था, उसे पूरा ला दिया। कहाँ पे? फ्रांस में। सो वी कैन सी हियर कंजर्वेटिव्स रेगिम सेटअप इन 1815 वेयर ऑटोक्रेटिक। तो जो कंजर्वेटिव्स एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि उनकी जो मेंटालिटी थी वो ये थी कि किंग का रूल जो होता था वही बेस्ट होता था। तो 1815 के बाद से जो कंजर्वेटिव्स का पूरा एरा सेटअप हो गया था, पूरा एज सेटअप हो गया था, वो किस पे कंसंट्रेट करता था? वो ऑटोक्रेटिक पे कंसंट्रेट करता था। मतलब कि जब पावर किसी एक पर्सन या एक कम्युनिटी के हाथ में सारी की पावर, पूरे नेशन की पावर आ जाती है और उन्हें किसी भी तरीके का क्रिटिसिज्म मतलब निंदा करना उनकी या फिर उनके खिलाफ कोई काम होता है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और इसे करप्ट करने के लिए वो जितना कुछ भी बन पाता था वो सब कुछ करते थे। मतलब कि अपने खिलाफ कोई भी आवाज़ उठ रही हो तो बिल्कुल उसी तरह जैसे लुईस सिक्सटीन करता था उसको दबाने के लिए ये लोग हर कोशिश किया करते थे। तो कई जगह तो वहाँ का जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट था उसने तो पूरा बैन लगा दिया था या फिर उस पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था कि न्यूज़पेपर्स पे, बुक्स पे, प्लेस पे, सॉन्ग्स पे, जो जो भी न्यूज़पेपर, बुक्स या फिर जो प्ले वगैरह होता है, छोटा मोटा ड्रामा और सॉन्ग्स वगैरह, जो जितने भी लिबर्टी और फ्रीडम के आइडियाज़ को प्रमोट करते थे उन सब पे जो है वो थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे। अब यहाँ पे आप एक देख सकते हैं कि कैरिकेचर क्या होता है? एक इमेज बना होना जो कुछ फ़नी कुछ रिलेट करता है, एक तरीके का सरकाज़म, मतलब कि सोसाइटी पे एक तरीके का मॉक करता है, मजाक उड़ाता है, उसे ही कैरिकेचर कहते हैं। तो एक दिखा रहा है एक मीटिंग है जिसमें कि हैं तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स, एक गवर्नमेंट बनी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लीडर्स बैठे हुए हैं, बट सबके मुंह पे बंधा हुआ है एक पट्टी। इसका क्या मतलब है कि मतलब लोग बैठ तो सकते थे एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन पे, पर उनका कोई सुनने वाला नहीं था। जो एक पर्सन बोलता था वही होता था और इन सब के मुंह पे ताला लगा हुआ था। दिस मीन्स दैट द क्लब ऑफ थिंकर्स, okay, this was the caricature which was made in the year 1820. So this was all about the topic which we were discussing, a new conservatism after year 1815. So एज वी कैन सी हियर कि जो कंजर्वेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई थी उसने लोगों के रूल को पूरी तरीके से करप्ट करने के लिए, पूरी तरीके से क्रश करने के लिए बहुत सारी चीज़ें अपनाई। लिबर्टी और फ्रीडम का जो आइडियाज़ जो नेशनलिस्ट के बीच में, लोगों के बीच में जो प्रचलित हो रहा था, उसे पूरी तरीके से रोकने की कोशिश की। और इसी के साथ उन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस का छीन लिया, मतलब कि सब पे जो है रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि कोई भी कुछ भी छापने से पहले उनको कंसल्ट करना पड़ता था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द रेवोल्यूशनरीज। मतलब कि जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि जब लुईस सिक्सटीन की गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा सब कुछ हो गया था, जैसे जब लोगों पे बहुत ज़्यादा वो अत्याचार करने लगा था, बहुत ज़्यादा टैक्स, तो लोगों ने फाइनली उस लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने रेवोल्यूशन कर दिया। सेम वे फिर से जब कंजर्वेटिव्स की गवर्नमेंट आई उन्होंने फिर से सब कुछ पहले जैसा करना का चाहा, सब रूल फिर से वही सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर दिया। तो फिर से एक रेवोल्यूशन छिड़ा की, क्योंकि लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी जो कुछ भी हो रहा था। तो इस कंटेस्ट के बारे में वी विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। Yes, dear learners, I would like to end up today's lecture and hope that all of you remain safe and remain at your home so that you can be safe from this pandemic that is COVID-19. So take care of your elders and younger ones at your home.
Do not skip your video lectures as it is very important for your board examination. It will fetch you marks. These chapters are very important. Do your daily assignment, do revise the videos. If you are not getting any point, watch the video one or more than one time so that you are clear with your topic. Still, if you have any doubt, I am suggesting you that you can openly ask your doubt. You can comment below, okay? As well as at the same time, I would urge you all to please like, share and subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon below so that you never miss an update. So again, I would like to say, stay at home and stay safe. Thank you. Have a good day.